Good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet, and we are back with the Wednesday meet. And today the topic is success and happiness. So before I dive deep into the subject topic right away, let us have some understanding of what is success and what is happiness. Okay. Now, if I ask a question, who all want to be successful in life? That will be a stupid question. Everybody wants to be successful? Yes. And everybody wants to be happy? Yeah. Yes. So obvious answers. Now the only thing is how 99% of the population on this planet Earth are living is the world of success and happiness is totally collapsed. When I say collapsed, you cannot distinguish between the success and the happiness. For 99% of the population, they live in conditional happiness. When I get this, I will be happy. When I get that, I will be happy. With this and that, you can feel whatever you want to. Correct? So when I have a job, I will be happy. When I get married, I'll be happy. When I get 50 lakhs in my bank account, I will be happy. So it is all conditional happiness, right? People are pursuing success thinking that success is going to give them happiness. But these two worlds are entirely different and maybe totally not at all connected to each other. So first let us inquire into, can I be successful and not be happy? Most of the celebrities who commit suicide will vouch for that. They are successful, they are celebrities, and then they commit suicide. That means they are not happy. So we have ample proof for that. So that destroys one myth that successful people are happy. Correct? Being successful is a separate ball game. Being happy is a separate ball game. Now let me ask the other question. Can I be happy and not be successful? Tough question. But can I be happy and not be successful? Yes. Answer. You have to look into your life and see, or you can look into the life of celebrities or whomever you know. You think this person is successful? You think. Then you say, okay, he's successful. Is he happy? Or you look at a person and he says he's happy. Is he successful? A fakir moving on the साधु है जिसने पूरे संन्यास ले लिया है, वैराग्य में जी रहा है, he is very happy. And if you consider successful parameters for him, he will be a big zero there. So we understand there are two worlds in which we are operating in life. In this materialistic world, in this universe, there are two worlds of operation. That means you can operate in two worlds. One is the world of success and one is the world of happiness. So today we are going to explore into this. With this background, let me have some people share what is opening up for them. Look into your life. You can give reference of others, but then you have to basically look into your life. Look at the time when you were successful and not happy. Look at those situations when you are happy and not successful. And now if you are, there could be also a situation when you are neither successful nor happy. Miserable, suffering, painful. Or now today you could be at a good position where you are successful as well as happy. So now you have gone through all the four stages. Okay. So wherever you are, you have to look into your life. And today, what I'm going to do for you is, my promise to you is, I will uncollapse these two circles for you. मतलब world of success and world of happiness को अलग-अलग मैं कर दूंगा आपकी लाइफ में, so that you can see both these worlds clearly and then move on the journey so that you are both successful and happy in this lifetime. Okay. So that is the intent and the promise of this program. How many of you are excited? How many of you are excited? Okay, good. Very good. So now let us have some people share. Yes, Imiji, you wanted to share something? Go ahead. Yeah. So I have a very live example in front of me. First of all, if I take my own life, once upon a time, I was at the peak of my career. I was very successful business mein, profession mein. I was a very known personality when I was in my married life. But I was not happy at that time because हमारे struggles चल रहे थे. So success पूरी देखी हम लोगों ने बहुत अच्छे level पे पहुंच के.
then collapse हो गया पूरा, personal life भी खत्म हो गई, professional भी खत्म हो गई. Now to some extent I am successful, but I am more happy. Although I may not be very successful, जो मैंने expect किया था कि मैं वहां पहुंचूंगी, वो अभी तक नहीं पहुंचा, but still I am happy with the kind of growth. Let it be slow, let it be consistent, धीरे धीरे. Secondly, both of my sons. Now my younger son is working with Google, earning very good money. Right now we But will every stick time I to call him, Simiji. Right now we will stick to your life because we want to connect with okay. you. So this is what I wanted to talk. Yeah. Good. So if just to summarize whatever Simiji has said, first of all, let us acknowledge Simiji that it takes a lot of courage to share from your life. तो पहले वो सक्सेसफुल थी, हैप्पी नहीं थी. फिर जब कोलैप्स हुआ, सक्सेस भी नहीं रही, हैप्पीनेस भी नहीं रही. Now she is building up the happiness part, and success is following to some extent. Correct? If I understand correctly, that is what Simiji has shared. How many of you can see this Yeah. chart very, very clearly? Correct? How many of you can see your own chart in your life? This is how you need to do introspection. So just in line with what Simiji has shared, I will also share something without giving details. There was a time when I was neither successful nor happy. सब कुछ बर्बाद था. And then I somehow gained some kind of success, but there was no happiness. So I decided this is not the path for me. I started in quest of happiness then, and slowly the success followed. And now today I can at some level say that I am successful and I am happy doing whatever I am doing in my life, and I am at the peak of the blissful life that I wanted to live. So I'm living every moment of that success and happiness which I desired, which I dreamt of, and that is possible and that is achievable. Correct? So right now, we'll not go into the details, but let me explore more into your life. So who wants to share what is opening up for you, how you see your life in terms of success and happiness? Yes, कौन बोलना चाहेंगे? Anyone? Anyone who wants to share? Praveen ji, Gunjan, you are the only two I can see on the video. Yes, Gunjan, you want to share? Go ahead. सर यस सर मेरी भी स्टोरी सेम है सिमी जी जैसी. आई वाज द मेरे को बाद में पता चला था कि मैं इतनी सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हूँ. I was the first woman to travel from the northern India alone to China and to other countries and to import goods from there and sell here. But I was not at all happy inside. I used to drink. I used to मतलब एक था कि बस पैसा कमाना है, बच्चे पालने हैं, दैट्स इट. यही मेरा एक टारगेट होता था. बाद में पता चला कि ओके देयर इज एक कोई बैच भी ऐसा मुझे मिला. आई वाज नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट द बैच. आई वाज ओनली बॉदर्ड अबाउट मनी 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 एंड मनी. एंड अंदर से खुश नहीं थी. बट अब मेरे पास एक गोल्ड की रिंग भी नहीं है एंड आई एम वेरी हैप्पी. वेरी वेरी हैप्पी इनसाइड. So again, if you draw the chart, initially you were you had success, no happiness. Yes. And then now you have happiness and not success. I would say that. But do you think that the success is following you? But yes, of course, I am successful because I am a successful. I'm succeeding as a parent, Okay, as good. a So human being. you have measures of success for you, correct? So now you are slowly moving at the level of Yes. happiness, and success will keep following you. Very good. So that's a wonderful, wonderful analysis Yes. of your own life. Let's acknowledge Gunjan ji. Yes. Anybody else who would like to share? Thank you. Thank you. Anirudh ji, Manish ji, Pushpa ji, namaskar. Mani, Mitra ji, and Amit ji. Yes. Anybody who would like to share? Good evening, sir. Yes. Yes, Mani. Sir, even though I joined little bit late, but then wanted to know, like, what are we referring to success here as? Are we referring to financial success or success being a better person? Success in, I mean, if we say metaphor as success, what is success? Okay, so whatever Are we only success talking means about to the you, career? whatever success means to you. Okay.
So, okay, Okay. let me first tell, since you have asked this question, let me first clarify what does success mean. So success as such, when we talk of success, we are talking of results that you are producing in the outer world, correct? So if you start our journey as a school student, you pass your 10th standard, first level of success. 12th standard, second station, you can say. If success is a journey, then it is a second station in your life. 12th, possibly, correct? In fact, a child who is learning to walk and takes his first step, that is also success, by the way. Yeah, but I will take the bigger ones, which world notices, correct? So 10th standard could be first goal that you achieved. 12th standard, then graduation, correct? And then possibly your first job. And then possibly your family life, when you became parent. So all these are some goals that you have achieved in your life. So success is always some results which you have achieved in the outer world. That means there has to be some effort, there has to be a result, and that result should be something that you desire. Then you say, okay, yes, I have achieved success in my life, in some area of my life, and I am successful. So you will get a feeling of being successful. Clear? So Hanji. what we were discussing is that most of the people live their life like, when I achieve this, when I am successful, then I will be happy. That is one way of living. So for these people, success and happiness, the world of success and world of happiness are collapsed. They can't distinguish between what is success and what is happiness. So this session, I'm going to uncollapse these two so that you get a clearer picture of what is success for you and what is happiness for you. Okay. So building on that, success is always in the outer world and happiness is always in the inner world. So you can say happiness is at the level of being and success is at the level of doing. Okay, I'm giving you some distinctions so that you can make it clearer to you in your mind. When you want to achieve success in life, it is not entirely in your control. So suppose a cricketer comes out, batsman comes out, Virat Kohli comes out and he says, I'm going to hit a century today. That is success for me today. So does that depend only on him? No, it depends on a lot of situations. How the opposition is bowling, what is the scene, how is the pitch, and he can get out at 0 also. Correct? So success is never completely in our control. It is based on the result that you achieve in the outer world. But happiness is a choice. It is at the level of being. Whether I get out at 0 or whether I score 100 runs, I can still be happy. So happiness is at the level of being and success is at the level of doing. Success depends on many other situations, many other parameters, I would say. And happiness doesn't depend on anyone else. Happiness is a choice. It is at the level of being. I choose to be happy. Life situations can be anything. Correct? These are the basic distinctions of the world of success and the world of happiness. Now, if it has opened up something for you, you can share something. Just Manish ji, आपने hand raise किया. You want to share something? Go ahead. यस जय गुरु जी। Yes. आप भी और सभी संगत को बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, हैप्पीनेस एंड सक्सेस में कोई रिलेशंस नहीं है। यदि मेरे समझ से सक्सेस इज अ पॉइंट, आपको कहाँ पहुंचना है। हर एक आदमी का इंडिविजुअल अप्रोच है सक्सेस को कहाँ ले जाना, लेकिन हैप्पीनेस आपका डेली है। आप जिस काम को भी करो, लेकिन हैप्पीनेस अपने अंदर महसूस हो। आपने इनर वर्ल्ड बोला, इनर दैट इज वही चीज है जो हमें सक्सेस के अलावा मिलता है। दैट इज अ पीस। वो पीस जब भी आता है, मैं तो सीधा बोलता हूँ कि या तो गुरुजी के मंदिर या कहीं भी आप जो स्थान चुने, कोई एक स्थान जहां आपको शांति मिले। जब शांति मिलती है तो आपके रिजल्ट हमेशा कुछ ना कुछ तो मिलेगा। बस मेरा एक ही सब बोलना है। बहुत बढ़िया सक्सेस मनीष जी। और कोई जी, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। So let us look more into our life and let's Thank have you, more sir. people share. First of all, let's acknowledge Manish ji. Manish ji, आप पहली बार आए हैं यहाँ पे, so welcome to the session. Whenever Yes. जब भी आपको लगे कि Thank आपको you, कुछ sir. शेयर करना Thank है तो आप शेयर कीजिए। ठीक है? Yes. Thank you, sir. So Thank anybody else who wants to share, who has now got some more clarity about what is success and what is happiness in your life? Look into your life and see. We go through different stages in life. Correct? तो कभी सक्सेसफुल होते हैं, हैप्पी नहीं होते, कभी हैप्पी होते हैं, सक्सेस नहीं होती, कभी दोनों ही नहीं होते, और फिर लास्ट में एक स्टेज आती है
and hopefully it should come at the last when you are both successful and happy. Then you are stable. Stable means then you are stable in the divine wisdom. Then you are a seeker, you have achieved, you're moving on the spiritual journey, and you have actually understood both the worlds of success and happiness. So let's have more people share. Welcome, welcome Anirudh जी, बहुत दिनों बाद आए हैं. 2 हफ्ते से तो खैर हमारा प्रोग्राम ही नहीं हो रहा था, पर उससे पहले भी आप नहीं आ रहे थे. ओके, नहीं, मैं आ वेलकम. रहा था। अच्छा, दिख नहीं रहे थे. हाँ, दिख नहीं रहा All था। right. Okay, anybody else who wants to share? Praveen ji, your views and मैं money. मैं ही करता हूँ शेयर। हाँ, share. अनिरुद्ध जी बोलिए. तो मेरा इन दोनों के बारे में ये विचार है कि हैप्पीनेस का मतलब है जब हम अपने एफर्ट्स करते हैं, पूरे 100% एफर्ट्स करते हैं, तो वी विल गेट द हैप्पीनेस। सक्सेस मिले ना मिले वो एक अलग इशू है, परंतु चाहे वो अपना अपना कैरियर हो या स्पिरिचुअल लेवल हो या कोई भी हेल्थ का है, अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं तो हैप्पीनेस आ जाएगी। और सक्सेस तब मिलती है जब हम अपना कोई एम बनाया है, वो एम को हमने पा लिया तो हमें सक्सेस मिलती है। और जरूरी नहीं कि हम उस समय हैप्पीनेस हो, हमने एक एम तो मिल गया, दूसरा एम में अभी नहीं मिला है, तो सक्सेस उस पर्टिकुलर एम जो मिला है वो सक्सेस है। हैप्पीनेस मैं ये मानता हूं तब है जब हम हर तरीके से एफर्ट्स करते हैं। Okay. Okay, let me make it more clear to you. Let's acknowledge Anirudh ji first of all. थोड़ी सी क्लैरिटी ये रखूंगा क्योंकि आपने बोला हैप्पीनेस में एफर्ट लगता है. हैप्पीनेस में एफर्ट नहीं लगता, हैप्पीनेस में चॉइस लगता है. एफर्ट तो सक्सेस के लिए लगता है. सक्सेस अगर अचीव करनी है तो आपको कुछ ना कुछ कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि बाहर की दुनिया में है, उसमें एफर्ट्स लगेगा. हैप्पीनेस आपकी चॉइस है. आपका एक्सीडेंट हो गया, टांग में चोट लग गई, आप तब भी खुश हो सकते हो कि शुक्र है मेरी जान बच गई. करेक्ट. बाहर की दुनिया में आपको लोग कहेंगे कि अरे यार गड़बड़ हो गई, यू नो यू आर इट्स काइंड ऑफ ए फेलियर, आपकी एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई. बट अ पर्सन, इफ आई एम इन दैट सिचुएशन, आई विल से जान बच गई, बहुत अच्छा है, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल टू द डिवाइन. तो हैप्पीनेस इज ए चॉइस. एक मिनट सर, हैप्पीनेस इज ए चॉइस. लेकिन अगर मेरे को मैराथन दौड़ना है और मेरे को फर्स्ट आना है, ये मेरा टारगेट है, तो मेरे को एफर्ट करने पड़ेंगे उसके लिए. तो एफर्ट करूंगा तो बाहर की दुनिया में रिजल्ट्स आएंगे, वो मेरे को सक्सेस देगा या नहीं देगा. करेक्ट. अगर मैंने अपने गोल को पूरा किया, अपने एम को पूरा किया, तो या मैं सक्सेसफुल हूं या मैं नहीं हूं. जैसे मैंने अभी कहा, एक क्रिकेटर या तो 100 मारेगा या 0 पे आउट होगा. एक में फेलियर होगा, एक में सक्सेस होगा लोगों की नजर में, लेकिन वो अपने अंदर क्या फील करता है उस समय, वो डिसाइड करेगा कि वो खुश है या नहीं. करेक्ट. तो हैप्पीनेस इज एट द लेवल ऑफ बीइंग, इट इज ऑलवेज ए चॉइस irrespective of the situations. Success depends on the situations and on many other parameters. बाहर की दुनिया पे बहुत लोग, आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको जॉब में सेलेक्ट होना है, ये सिर्फ आपके एफर्ट पे ही काम नहीं करेगा. सामने जो इंटरव्यू ले रहा है उसके भी कर्म जुड़े होंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का भी कर्म जुड़ा होगा, और जितने बाकी लोग पार्टिसिपेंट्स आए हैं जो इंटरव्यू देने आए हैं, उनके साथ भी आपका कंपटीशन होगा. तब आपको एक पूरे रिजल्ट के साथ आपको एक सिलेक्शन होएगा, तब आपको वो जॉब मिलेगी. तो सक्सेस विल डिपेंड ऑन मेनी पैरामीटर्स. लेकिन अगर आपको जॉब मिले या ना मिले, आप दोनों ही सिचुएशन में खुश रह सकते हो. यस, दैट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द हैप्पीनेस एंड सक्सेस. क्लियर है? वंदे मातरम सर, may I speak? यस मित्रा जी, गो अहेड. सर, अभी फ्रेश थॉट आपको सुनते हुए और बाकी ओरेटर्स को भी सुनते हुए आया कि हैप्पीनेस इज अ चॉइस. ये बात तो ठीक है, लेकिन सर हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड. चॉइस के अलावा भी, जैसे आपने कहा कि अप्रिशिएट, आप हर मेंबर को अप्रिशिएट करते हैं, तो देयर इज अ फीलिंग ऑफ we are happy, so we become happier, है ना. More happiness is being created. You create happiness also. Same is if a friend is into a distress, तो you अपनी पर्सनल डिस्ट्रेस को, तो आपका एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, आपने कहा चलो यार जान बच गई, ये तो अच्छा एक एग्जांपल है कि शुक्राना मोड में आके, ग्रेटिट्यूड मोड में आके आपने हैप्पी मोड में किया कि चलो जान बच गई, लॉस है, रिकवर हो जाएगा. बट जब किसी दोस्त का लॉस होता है या कोई नियर एंड डियर वन चला जाता है सर, तो सर तब वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं रहता सर. वो
वो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दैट, बट ये I थॉट अभी understand. सुनते हुए समझते हुए आ रहा था कि दैट इज हैप्पीनेस इज वन थिंग, सक्सेस आल्सो दैट अकम्प्लिश व्हेनेवर वी आर सक्सेसफुल, तो वो भी एक हैप्पीनेस क्रिएट करता है सर, Yes. तो दे आर Yes. इंडिपेंडेंट बट एसोसिएटेड। Yes. That's why I said these are two different worlds. यस These are सर, two different worlds. How you operate these two will give you the balance in life. राइट सर, मैं ये नहीं कह रहा अगर 12th में आपका बेटा अगर 95% लाता है तो आप पार्टी नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे, आप खुश हो, अच्छा रिजल्ट आया है, राइट बट सर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस हैप्पीनेस विल नॉट बी लास्टिंग। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो बाहर की दुनिया में सक्सेस जो मिल रहा है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, इसलिए हैप्पीनेस भी परमानेंट नहीं होगी। बट जो चॉइस आप लेते हो सिचुएशन में कि मेरे को खुश रहना है चाहे कुछ हो जाए, वो चॉइस है, वो बीइंग लेवल पे है। Get that? तो सक्सेस से जो हैप्पीनेस मिलती है वो अलग है, और अगर आप प्रॉपरली पूरी तरह से हैप्पी रहते हो और फिर आप एफर्ट करते हो तो सक्सेस जो आपको मिलेगी वो अलग है। तो यू कैन बी हैप्पी एट एनी सिचुएशन एंड क्रिएट सक्सेसफुल इवेंट्स इन योर लाइफ। अगर सर आप यहाँ पे हैप्पी भी हो। थोड़ा सा सर, यहाँ पे भी थोड़ा सा एक डुअलिटी आ जाती है सर, जब हम लेबल लगा देते हैं ना कि मुझे हर हाल में खुश रहना है, मैं आई इफ एट सम पॉइंट लेट अस से आई एम टेकिंग केस ऑफ दिस थिंग कि भाई आई एम एट अ क्रिमेशन ग्राउंड, आई एम एन माय फ्रेंड हैज लेफ्ट एंड सम डियर वन हैज लेफ्ट, तो मैं कितना भी ऊपर से लेबल लगाता रहूं, आई एम इंड्यूसिंग हैप्पीनेस इनटू माई सेल्फ, आई एम ट्राइंग टू टेक अवे दैट विषाद, मैं दुख को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज एन एफर्ट आई एम पुटिंग, बट एक्चुअली यू नो एक अंडरस्टैंडिंग ये है, एक वो जो आत्मा देख रहा है वो देख रहा है कि यार दुखी तो तू है, और अब हैप्पीनेस, आई कैनॉट से दैट आई एम हैप्पी, मैं बट क्रिएट करने की सोच रहा हूँ कि भाई जो भी है ईश्वर यत् करोति शोभनमेव करोति, कि जो प्रभु इच्छा है तो उसमें हम कर ही क्या सकते हैं। करेक्ट। So that is also at times you are helpless. You're not happy, but you वो झूठ नहीं है, क्योंकि हमारा यही संस्कार है, ये शिक्षा है कि भी इससे उबरना है तो हैप्पीनेस का लेबल लगाना ही पड़ेगा, नहीं और नहीं, कोई ऐसा चारा नहीं ही है। नहीं है। आप थोड़ा सा उसको दूसरी डायरेक्शन में ले गए। अगर किसी की जी मौत हुई है, दुख होगा, बिल्कुल होगा, जी सर, ठीक है ना, लेकिन उसमें डिप्रेशन में नहीं जाओगे आप। अच्छा सर, करेक्ट इसको मैं थोड़ा होल्ड ऑन। अगर इवेंट एक हुआ है और वो फेलियर है, यू शुड नो हाउ टू हैंडल दैट फेलियर। अब कोई 0 पे अगर आउट हो गया बैट्समैन, वो आके पार्टी नहीं करेगा, मतलब वो वहां पे नाचता कूदता वापस नहीं आएगा, वो बैट ऊपर उठा के नहीं आएगा, सेलिब्रेशन नहीं राइट करेगा, वो 0 पे आउट हो वो सर झुका के आएगा। करेक्ट। उस समय दुख हो रहा है राइट उससे, बट वापस आने राइट के बाद वो कहेगा कोई बात नहीं, मैं चैंपियन हूँ, इस बार 0 पे आउट हुआ, अगली बार 100 मारूंगा। तो ही विल बाउंस बैक फास्टर। करेक्ट। तो अगर डेथ भी हुआ हो फैमिली मेंबर का या फ्रेंड का, अगर दुखद घटना कोई हुई हो, तो वो उसमें जश्न ही नहीं मनाएगा। ओनली थिंग इज ही विल बी बाउंसिंग बैक टू नॉर्मल लाइफ वेरी फास्ट। दिस विल हैपन व्हेन एट द बीइंग लेवल यू आर, मैं बीइंग लेवल बार बार बोल रहा हूँ, हैप्पीनेस इज एट द लेवल ऑफ बीइंग, नॉट इन द लेवल ऑफ डूइंग। तो क्रिमेशन ग्राउंड में जाके राइट आप नाचेंगे नहीं, क्रिमेशन ग्राउंड में जाके आप उनको सांत्वना ही देंगे, कॉन्डोलेंस ही करेंगे, लेकिन बाहर आने के बाद यू विल बी बैलेंस एंड यू विल ट्राई टू ब्रिंग हिम आउट एज सुन एज पॉसिबल। उसको उस दर्द से बाहर लाने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। तो हैप्पीनेस, दैट इज व्हाई आई सेड, इज द लेवल ऑफ बीइंग, नॉट एट द लेवल ऑफ डूइंग। डूइंग लेवल पे जो अप्रोप्रिएट होगा वही करोगे आप। राइट सर, करेक्ट। So that is a slight करेक्ट distinction in what you do when you are happy, and when you are being happy, how you console somebody else, that is different. क्योंकि बीइंग लेवल पे आप एक आत्मा हो, और आत्मा के जो सतोगुणी संस्कार हैं उनको जागृत करना जरूरी है। तो आई एम ए लवफुल सोल, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए पावरफुल सोल, आई एम ए हैप्पी सोल। मैं उस कॉन्टेक्स्ट से बोल रहा था, एट दिस बीइंग लेवल, एट द सोल लेवल, यू आर हैप्पी। दिस इज द डिस्टिंक्शन राइट you सर, should understand. Correct. क्लियर क्लियर, Very good Mitra ji, that's a good question. Let's acknowledge Mitra ji for that. थैंक यू सर। Great. Let's have some more people share what is opening up, anything that is opening up for you. अगर आपको दोनों सर्कल क्लियर नहीं है, world of happiness and world of success, then we can have some discussion. Otherwise we move on to the next topic. Tarun, you wanted to share something in between? I stopped you. कुछ बोलना चाह रहे थे? बस यही कि जो उस समय की स्टेट होती है, उस स्टेट के अंदर हैप्पीनेस मतलब लाफ या खुशी आएगी नहीं कभी भी, बिकॉज दैट इज अ फील्ड ऑफ ग्रीफ। बट कंटेंट मतलब उस समय काम कितना रह सकते हो, कंटेंट नहीं, काम कितना रह सकते हो,
एंड ओवरवेलम ना होके, तो दैट इज द स्टेट वी शुड प्रैक्टिस अपॉन, आई गेस. You can't practice that, but you should create that at the level of being, as I said. So I am a peaceful soul, I am a wise soul. यहाँ पे wisdom काम आएगी. जो ब्रह्म सत्य है उसको आप पहचानोगे कि जो मिटा है वो शरीर है, आत्मा हमेशा अमर है. उस कॉन्टेक्स्ट को आपने जगाना होगा. वहां पे नहीं बोलोगे किसी को, लेकिन अपने आप को समझाना होगा. ये अगर आपके कोई चहेते गए हैं तो यू शुड नो दैट इट इज द लाइफ फॉर्म विच हैज गॉन. लाइफ इज इटर्नल एंड यू आर दैट लाइफ. राइट? आत्मा अमर है, शरीर है जो आएगा जाएगा. तो और ये नॉर्मल है. इसीलिए जो 13 दिन का हम शोक मनाते हैं वो इसीलिए होता है कि वो ग्रीफ को निकलना है. ग्रीफ को एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे, एंड देन वी मूव ऑन विद लाइफ. दैट्स व्हाट हैपेंस इन ऑल द सिचुएशंस. देयर इज हार्डली एनी फैमिली हु हैज नॉट विटनेस्ड एनी काइंड ऑफ फैमिली मेंबर पासिंग अवे, और हर 13वें के बाद दे आर बिकम नॉर्मल एंड दे मूव ऑन इन लाइफ. राइट? एक क्वेश्चन आगे और आता है, जैसे हाँ हम अपने जब वेदांता विजडम कर रहे थे उसके अंदर हमने रजस, तमस, सत्वा ये स्टेट पढ़ी थी. तो ये किस स्टेट में जाके वो ये स्टेट अचीव होगी? सत्वा वाली स्टेट में, या उससे भी ऊपर जो गुरु वाली स्टेट है उसमें? नहीं, अगर आप लाइफ फॉर्म में हो तो आप सत्वा में ही रहोगे. अगर आप जिंदा हो, शरीर में हो, तो आप सत्वा तक ही पहुंच जाओ, बहुत है. ठीक है? मतलब समाधि ये स्टेट में आप जो निर्गुण बनोगे तो आप तमस से, रजस से बाहर निकल के आओ. तो अगर अब आप बहुत इमोशनल हो, दुख हो रहा है आपको, तो कहाँ हो? आप रजस में हो. लेकिन उस दुख में अगर आपने बिल्डिंग से छलांग मार दी और सुसाइड कर लिया तो आप तमस में आ. या किसी का सर फोड़ दिया, या गाड़ी तेज उस चलाई दुख और में, एक्सीडेंट करके 6 लोगों को मार दिया, ये सब तामसिक हो जाएगा. समझ रहे हैं? पर अगर आप उस दुखी दुख हो की तो वो रजस है. दुख आएगा, चला जाएगा. पर उस दुख वाले जो रजस वाली स्टेट है उससे, ये जो हम आप बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ये रजत सत्वा की स्टेट की तरफ है या किस समाधि की स्टेट की तरफ है? नहीं, अभी समाधि तो आप छोड़ ही दो, डिस्कशन में मत लाओ. ठीक है? ठीक है. 3 गुणों से है पूरे यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ बना है वो 3 तत्वों, 3 गुणों से बना हुआ है. एक तामसिक है, एक राजसिक है और एक सात्विक है. बस. ठीक. जब इस यूनिवर्स से परे निकल जाओगे तब बात करना समाधि स्टेट की या निर्गुण. ठीक है? ठीक. तो तामसिक नहीं जाना है हमको, राजसिक में रहना है, बैलेंस करना है और वापस सत्वा में आना है. ठीक. क्लियर है? गुड. राइट सर. Okay, let's acknowledge Tarun. Good. Yes, anybody who is not clear, who wants to ask any question, please go ahead. सिमी जी, परवीन जी, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? नहीं सर, क्लियर हो गया अभी तो. क्लियर है? तो वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस, वर्ल्ड ऑफ सक्सेस, क्लियर है? गुड. Yes. तो सक्सेस इज एन ऑनगोइंग जर्नी इन लाइफ. जब तक आपकी लाइफ चल रही है, आपके लिए एक सक्सेस का पाथ होगा और उसमें डेस्टिनेशंस आप खुद बनाएंगे. जहां तक आ गए, पीछे देखिए, आपने बहुत सक्सेस अचीव करी है और आगे के लिए आपके पास एक ना एक गोल होना चाहिए, विच एक्चुअली गिव्स यू द पर्पस ऑफ लाइफ. तो आपके पर्पस ऑफ लाइफ से आपको अपने गोल्स बनाने हैं ताकि आप लाइफ में आगे सक्सेस अचीव करते रहें, चाहे वो स्पिरिचुअल गोल हो या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के गोल्स हो. गोल्स होने जरूरी हैं, वरना आपकी लाइफ आगे डायरेक्शन नहीं मिलेगी. और उनको अचीव करते समय हैप्पीनेस एज ए पार्ट ऑफ योर बीइंग इज इम्पॉर्टेंट. तो जैसे मैंने शुरू में कहा, 99% ऑफ द पीपल बिलीव दैट इफ आई गेट सक्सेस आई विल बी हैप्पी, बट देयर आर 1% ऑफ द पीपल who says I am happy, I am grateful, and whatever I am achieving in my life is magic, and the magic actually happens. Yes or no? So उनका मंत्र एक ही होता है, feeling happy, giving thanks. I am happy, I give thanks. तो gratitude and happiness के मंत्र से, मूल गुरु मंत्र से वो आगे बढ़ते हैं, एफर्ट्स करते हैं, अपने बेस्ट एफर्ट्स करते हैं, एंड दोज एफर्ट्स आर ऑलवेज गाइडेड टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ देमसेल्व्स एंड पीपल इन देयर लाइफ, यानी कि कंट्रीब्यूशन के साथ, एंड दैट विल ऑलवेज गिव यू सक्सेस. फिर वो मटेरियलिस्टिक गोल हो, यानी कि आपके हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, या फिर स्पिरिचुअल गोल हो, जहाँ पे आप अपने साधना से अपने स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ा रहे हो, स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ा रहे हूँ. राइट? तो इन बोथ द एरियाज यू विल फाइंड दैट फीलिंग हैप्पी, गिविंग थैंक्स इज अ वेरी गुड मंत्र फॉर लाइफ.
वो कहाँ पे था, किसी मूवी में था कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, काबिल बनो और कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आई। रेंचो, रेंचो बोलते हैं ना 3 इडियट्स में। यस, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, सो डोंट रन आफ्टर सक्सेस, बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल, बी वर्दी, काबिल बनो, बी वर्दी, एंड प्राउडली से आई एम ए वर्दी चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम वर्दी, एंड देन यू मेक योर एफर्ट्स, कामयाबी सक्सेस झक मार के आपके पास आएगी। सो हैप्पीनेस इज द फाउंडेशन फॉर सक्सेस इन योर लाइफ, लुक एट इट दैट वे। अगर कनेक्शन बनाना ही है तो ये कनेक्शन बनाओ, ये हैप्पीनेस इज द फाउंडेशन ऑन विच सक्सेस विल हैपन। करेक्ट, अगर हैप्पीनेस का फाउंडेशन है तो सक्सेसफुल होने की बुनियाद बन गई। अब आप एफर्ट्स डालिए, आपको सक्सेस आसानी से मिल सकती है। लेकिन अगर आप बोलेंगे मैं सक्सेसफुल हो जाऊं उसके बाद मुझे खुशी मिलेगी, तो वो फाउंडेशन नहीं है। सक्सेस इज नॉट द फाउंडेशन फॉर हैप्पीनेस, बट हैप्पीनेस इज द फाउंडेशन फॉर सक्सेस। फीलिंग हैप्पी, गिविंग थैंक्स and achieving success is the mantra for your life. Yes? How many of you can get it? What is opening up? What is opening up? So let's have some people share. क्या ओपन हो रहा है? लाइफ सिचुएशंस जैसी मर्जी हो, लाइफ सिचुएशंस तो आएंगी जाएंगी। लाइफ का इवेंट कभी भी लाइफ से बड़ा नहीं हो सकता है। तो किसी भी लाइफ इवेंट में इतना आपको खुश नहीं हो जाना कि आप दुनिया की ऐसी तैसी कर दो, या इतने परेशान भी नहीं हो जाना कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लो। लाइफ का इवेंट लाइफ से बड़ा नहीं हो सकता। तो लाइफ के इवेंट में सक्सेस हो या फेलियर हो, वो लाइफ से बड़ी नहीं हो सकती। तो लाइफ का फाउंडेशन आप सिर्फ हैप्पीनेस को रखिए, सक्सेस आएगी। और नहीं आई कोई बात नहीं, सीखेंगे। या तो आप जीतोगे या आप सीखोगे। आइदर आई विन और आई लर्न, दैट शुड बी द माइंडसेट। यस, ओके, लेट्स हैव मोर पीपल शेयर। व्हाट इज ओपनिंग अप? कौन, किसने अभी तक कुछ I नहीं would बोला? like to यस take यस थोड़ा सिमी सा, जी, यस सिमी जी, if go ahead. nobody is sharing then I will नहीं, यू कैन take. शेयर एनीवे आउट। हाँ जी, बताइए। सर बट ऐसा होता है कि जितनी हमारी लाइफ सिचुएशंस आती हैं, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट माय सिस्टर और इवन माई सेल्फ, जब वो स्टेज होती है, जब हम डिप्रेशन में होते हैं, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, उस टाइम पे हम सोच के भी वी कैन नॉट बी हैप्पी। ऐसा लगता है कि यार इतनी तो तकलीफें चल रही हैं, अब तो हम उस स्टेज से निकल चुके हैं। बट इफ आई गो बैक टू माई लाइफ अर्लियर, इतनी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं हम लोग। उस टाइम पे हम अपने आप को बोलते हैं यार पागल है क्या, हम हंस रहे हैं। वाई हाउ कैन वी बी हैप्पी व्हेन देयर आर सच क्रिटिकल सिचुएशंस, जहाँ पे इतनी घर में वो चल रहा है और पैसे भी नहीं है और फाइनेंशियल लॉसेज है। हाउ इज इट पॉसिबल टू मेंटेन योर पीस ऑफ माइंड एंड योर क्या बोलते हैं, अपने आप को स्टेबल रखना? इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो यू डोंट हैव टू मेक एनी एफर्ट्स टू बिकम नेगेटिव, उसके लिए सोसाइटी काफी है ना? तो यू हैव टू मेक एफर्ट्स फॉर व्हाट? टू बिकम पॉजिटिव। या तो डेली मॉर्निंग यू शुड हैव ए, I won't say spiritual sadhana, but you should have a practice where you are bombarding your subconscious mind with positive affirmations. I'm a loveful soul, I'm a peaceful soul, I'm a powerful soul, I'm a pure soul, I'm a divine soul, I'm a happy soul, I'm a blissful soul, I'm a wise soul, I'm a fearless soul. ये क्यों बोलते हैं? ताकि ये अब आपके अंदर आपके सतोगुणी संस्कार को जगाए, ताकि आप सत्वा की तरफ बढ़ेंगे तो आप तमस और रजत से बाहर निकलेंगे। कोई सोसाइटी आपको पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करने वाली है, वो आपको खुद ही करना है। ये आपकी स्पिरिचुअल साधना है। नेगेटिव बनाने के लिए तो ये बहुत है, पूरी दुनिया आपको नेगेटिव बनाने के लिए कंडीशनिंग लेके बैठी हुई है। आई कॉल दैट सोशल हिप्नोसिस। सोसाइटी विल ऑलवेज कंडीशन यू टू नेगेटिविटी। ये नहीं कर सकते, तुम बेवकूफ़ हो, तुमको अक्ल नहीं है, तुम किसी लायक नहीं हो, यही सब सुनते आए हैं ना। तो कंडीशनिंग तो आपकी ऑलरेडी नेगेटिव हो चुकी है, उसको तोड़ना पड़ेगा ना। जो उसको नहीं तोड़ पाते हैं वो हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं। कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है मालूम है? We are not willing to let go of our past success and we cannot forget our failures.
अपने फेलियर्स को याद करते रहते हैं, फेलियर्स को हम भूल नहीं पाते, और जो इक्के दुक्के सक्सेस मिले हुए हैं पास्ट के उनको पकड़ के रखते हैं, उनको छोड़ना भी नहीं चाहते। अब राग और देश में फंस गए ना, आप उसी सक्सेस को रिपीट करने की कोशिश कर रहे हो जो नहीं आने वाले, और उन फेलियर्स को भूल नहीं पा रहे, तो फेलियर्स रिपीट होते जा रहे हैं। सोसाइटी हेल्प कर रही है आपको नेगेटिव होने के लिए। अगर आप नेगेटिव हो तो फेलियर्स ही क्रिएट करोगे, अगर आप विक्टिम हो तो विलन्स ही आएंगे लाइफ में। आप कोशिश कर रहे हो हैप्पी मैरिड लाइफ की, आप कोशिश कर रहे हो ग्रेट रिलेशनशिप्स की, लेकिन आप अंदर से विक्टिम हो, अंदर से अनलव्ड हो, आप किनको अट्रैक्ट करोगे? गलत लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे ना, विलन्स को ही अट्रैक्ट करोगे, वो और दुख देके जाएंगे, और फिर आप डिप्रेशन में आ जाओगे। अगर आप किसी एक की बात कर रहे हो, कोई डिप्रेशन में, क्यों है डिप्रेशन में? उसने कभी भी बीइंग हैप्पी एंड बीइंग ग्रेटफुल वाला मंत्र अपनाया ही नहीं है। कि आपके बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं, सब बढ़िया से काम कर रहे हैं। आपके छोटी उंगली में एक छोटी सी चोट लगे, पूरा ध्यान कहाँ गया? चोट पे। आपका मेंटल पीस खत्म। मेरे पाँव के अंगूठे में चोट लगी, हाय मैं मर गया, हाय मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। आपके बाकी सारे बॉडी ऑर्गन्स, सारे सेल्स, सारे टिश्यू, सारे ऑर्गन सिस्टम सब बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर आप किसी एग्जाम में 99% लाते हो तो खुश होते हो या रोते हो? खुश लेकिन होते पाँव हैं। में एक छोटी सी चोट लग गई, आप 1% काम नहीं कर रहा है, बॉडी 99% तो सक्सेसफुल हो तब भी, बॉडी के हेल्थ के हिसाब से 99% ऑफ द बॉडी इज सक्सेसफुल, बट यू आर क्राइंग कि मेरे को 1% मार्क नहीं मिला। फॉर यू टू बी हैप्पी इट इज ए कंडीशन यू हैव पुट कि मेरे को 100% बॉडी फिट चाहिए। बहुत मुश्किल है, 100% बॉडी फिट होना बहुत मुश्किल है। तो आप परमानेंटली दुखी रहोगे ना। तो क्या अच्छा चल रहा है उसके लिए खुश हो सकते हैं कि नहीं? पाँव में चोटी तो लगी है, दोनों हाथ तो सही है, हम्म। खाना तो खा सकता हूँ, मेरे दांत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। और अगर दांत में प्रॉब्लम है तो ठीक है, हाथ पाँव तो चल रहे हैं, सेशन तो ले रहा हूँ, क्या हो गया थोड़ी सी पेन हो गई तो? ये पेन 6 महीने पहले नहीं था, अगले 6 महीने बाद नहीं होगा। अब बीच में थोड़ी सी पेन हो रही है तो बर्दाश्त करो, क्या प्रॉब्लम? क्लियर है? ट्रू। तो यू इवन नीड आई टू, आई थिंक हमको पैसे से भी हम लोग रिलेट करते हैं कि पैसा होगा तब हम खुश होंगे। ये तो इतना बोल रहा हूँ, ये पैसा तो हो जाएगा 99% लोग तो यही कर रहे हैं ना, कि जब पैसा यही कर होगा रहे हैं तो मैं खुश होऊंगा। तो फ्यूचर हम में खुश खुशी, होंगे। फ्यूचर में डाल दी। यू शुड बी हैप्पी राइट नाउ, प्रेजेंट में। जब प्रेजेंट में खुश होंगे, ग्रेटफुल होंगे, तो आप सक्सेसफुल होने के लिए बुनियाद सही रखते हो। हम्म। अगर आप बोलोगे अगर मेरे पास 50 लाख रुपए होंगे तो मैं खुश होऊंगा, जब तक 50 लाख नहीं होंगे मैं दुखी होऊंगा ना। फिर अगर आपने माइंड को समझा दिया जब तक 50 लाख नहीं होंगे मैं खुश नहीं होऊंगा, तो आप अप टिल दैट पीरियड यू आर सैड, राइट? यू आर टेंस्ड अप। बोलो मैं आज खुश हूँ, मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, एंड 50 लाख आने ही हैं मेरे पास, अगले 1 साल में कवर करूंगा। नाउ यू आर हैप्पी, मेक एफर्ट्स एंड इट विल कम। अब आए या ना आए, एटलीस्ट यू आर हैप्पी, दैट इज इंपॉर्टेंट। So happiness is the foundation of success, not the other way around. And feeling happy, giving thanks, प्रवीण सर का मंत्र है। It is very very appropriate. जिन्होंने लाइफ एंड ब्रेथ में हो, प्रवीण जी जानती हैं। So feeling happy, giving thanks, and then making the right efforts and create magic and miracles in life. That is the foundation of success. तो सक्सेसफुल होने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, पैसे कमाने कमाओ, रिश्ते अच्छे रखने हैं रखो, हेल्थ अच्छी चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन ये सब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी आप सक्सेस मान रहे हो, उनको उसको मान लो कि सब जीरो हैं, सब जीरो 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 है। जैसे ही आप हैप्पी हो जाते हो, क्या होता है? उन सबके आगे एक 1 लग जाता है। नाउ इट मेक सेंस, वरना सिर्फ जीरो ऐड करने से कोई फायदा नहीं है। उसके आगे एक 1 लगेगा, अब जीरो ऐड करो, इट विल गिव यू क्वालिटी लाइफ। So being happy, being grateful, then achieving success will give you fulfillment in life. Yes? तो कितने लोगों को आज ये हैप्पीनेस एंड सक्सेस का
सर्कल क्लियर मंत्रा। हुआ, अनकोलैप्स हुआ, दोनों अलग अलग दिखे और आपको मालूम है कि आप इन दोनों को कैसे इकट्ठे लेके चलना है। तो चाहे पहले आपके पास हैप्पीनेस और सक्सेस नहीं थी, फिर हैप्पीनेस आई, या पहले सक्सेस आई फिर धीरे धीरे हैप्पीनेस आई, और अब आप तैयार हो दोनों अचीव करने के लिए। क्लियर है? तो दैट शुड बी योर अप्रोच टू लाइफ। लेट्स हैव मोर पीपल शेयर। वेलकम वेलकम निवेदिता जी, आप काफी लेट आई हैं शायद आज। एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर, you can go ahead. निवेदिता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आएगी इसमें। आ गई, अब थोड़ी सी आई है। आई? हाँ, आ गई आ गई। आई है? अरे वाह वाह, बढ़िया। बोलिए। ग्रेट। नहीं, फाइन एनीथिंग सर। यू वांट टू शेयर? बस बी हैप्पी, गिविंग थैंक्स, दैट इज द मेन थिंग सर। परफेक्ट। या निवेदिता जी को तो मंत्र याद है पूरी तरह से। यस, लाइफ एंड ब्रेथ। परवीन सर, यस। ओके, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स हु वुड लाइक टू शेयर? टेक अवे, क्या लेके जा रहे हैं सेशन से आज? आज का ज्ञान इतना ही है। एनीथिंग यू वांट टू शेयर? Yes, I was seeing the chat. If there is anything important, that's fine. तो टेक अवे क्या लेके जा रहे हैं सेशन से? Anybody? What is the clarity that you got about success and happiness today? So, We should be more towards happiness, not towards success. We should not run after success. Success should run behind, should come itself. Yeah, उसको इस तरीके से बोलते हैं, don't chase success, attract success. Don't chase Attract. people, attract the right people. तो चेस नहीं करना, पीछे नहीं भागना है, आपको एक मैग्नेट बन के खड़े होना है और सारी एबंडेंस आपके पास आएगी। यस, यू आर अ मैग्नेट ऑफ एबंडेंस, ऑफ हेल्थ, perfect health, perfect wealth, perfect relationships, and perfect success in life. Very good, बहुत बढ़िया सिमी जी। सर अभी जो आपने एक बात बोली, यू आर ए मैग्नेट ऑफ परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट वेल्थ, परफेक्ट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, परफेक्ट सक्सेस। यस, यू आर अ मैग्नेट। आप अट्रैक्ट करते हो लाइफ में लोगों को। तो लाइफ में जब ये चीजें नहीं होती तो वो मैग्नेट कहाँ चले जाते हैं? मतलब मैग्नेट में जान नहीं है, इसीलिए तो बोलते हैं हीलिंग करो। मैग्नेट में जान लो, तब मैग्नेट नहीं, अट्रैक्ट करेगा। वो मैग्नेट ही तो वेल्थ या ऐसे रिलेशंस आसपास लेके आता है जिनसे आपको पेन आता है, या ऐसे सिचुएशंस लेके आता है जिनसे आपको पेन आता है। हाँ, वो भी तो बिकॉज मैग्नेट में मैग्नेटिक दम नहीं है, उस मैग्नेट में दम नहीं है। मैग्नेट में अगर दम होता तो कुबेर का पूरा धन आपके पास होता। मैग्नेट में अगर दम होता तो ऐश्वर्या राय या जो भी आपकी ड्रीम गर्ल है वो आ जाती। नहीं है दम, मान लो ना। पहले आप देखो कि कितना दम उसमें ला सकते हो बची कुची जिंदगी में। यस, then you will attract the right person, the right people, and the right money and the right health for you. सब खुश होना चाहते हैं, सब हैप्पी होना चाहते हैं, सब हेल्दी होना चाहते हैं, नहीं हो पा रहे ना, क्योंकि दे आर नॉट परफेक्ट मैग्नेट्स। मैग्नेट का मतलब क्या है? आपके आगे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। कहीं प्राणमय तो कोश, विजडम का रोल, कहीं तो विजडम का रोल भी तो आता होगा कि वो विजडम तो बात आपके की पास बात है। कम होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है आपके ऊपर, वो कौन सा है? वो प्राणमय कोश है जिसमें प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति से आप अपनी लाइफ को अट्रैक्ट करते हो। आपकी लाइफ में वो लोग आते हैं जिनको आप अट्रैक्ट करते हो बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्राणमय कोश, द प्राणा एनर्जी इन यू। आपकी प्राणा एनर्जी में दम ही नहीं है। तो वो कहाँ से बिल्ड करनी होती है? प्राणायाम करो, हीलिंग करो। आप तो हीलर्स प्रोग्राम में हो। हाँ नहीं, वो ठीक है, मतलब वहीं से दैट इज द सोर्स फॉर यस, कन्वर्टिंग एम्पावर योर सोल। सोल पावर से आएगा सब, और कहाँ से आएगा? करेक्ट। गॉट ओके, इट। वेरी जो गुड, वेरी गुड अफर्मेशन तरुण। की बात कर रहे थे, लेट्स जब एक्नॉलेज तरुण। अफर्मेशन की बात कर रहे थे, ये काम करती है उसमें? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? जो हम सुबह, अभी आप कॉल पे अफर्मेशन कह रहे थे कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप को अफर्म करो, अपनी कुछ स्ट्रांगली, तो विल दैट बी वन ऑफ द सोर्स फॉर दैट काइंड ऑफ यस, यू आर इन्वोकिंग द मैग्नेटिक सोल एनर्जी? विद द राइट क्वालिटीज ऑफ योर संस्कार। आप सोल में सतोगुणी संस्कार को जगा रहे हो, आपकी सोल पावर बढ़ेगी ना। जितनी भी स्पिरिचुअल साधना है वो सब आपकी सोल पावर को बढ़ाने के लिए और आपकी प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए ही है। चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो हीलिंग हो।
इन सब से ही आप एक बेहतर मैग्नेट बनोगे और तब उससे आप अपनी लाइफ को अट्रैक्ट करोगे। इसलिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, दैट विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ ए लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ ए हीलर यू आर। आप कितनी हीलिंग कर रहे हो वो पता लगेगा आपकी लाइफ सिचुएशन जब चेंज होगी। लाइफ सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, बीमारियां जा नहीं रही हैं, दैट मीन्स आपकी हीलिंग नहीं हो रही है। गेट माय पॉइंट तरुण? Got it, दैट्स sir. फॉर यू। या तो लाइफ सिचुएशन चेंज करनी है, हीलिंग करो। जितनी हीलिंग कर रहे हो उससे नहीं हो रहा तो उसकी दुगनी करो। 1 घंटा हीलिंग से नहीं हो रहा, 2 घंटा हीलिंग करो। 2 घंटे हीलिंग से नहीं हो रहा, 4 घंटे हीलिंग करो। लाइफ सिचुएशन चेंज होनी चाहिए। दैट इज व्हेन यू विल क्रिएट ए पावरफुल लाइफ इन यू। और चेंज होने के बाद ये 2 घंटे अगर हमने पहले हीलिंग करते थे, बाद में 1 घंटे में आ जाए, आधे घंटे में आ जाए, तो फिर तो उसी हिसाब से लाइफ चलेगी। और क्या, आप लाइफ में देखो क्या हो रहा है। अगर उतने में रिजल्ट मिल गए आपको तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिला तो उसको बढ़ाओ। ज्यादा मिल गया तो कम कर लो। जैसे बोलते हैं ना, शुक्राना कम कर दो, आपको मिलना कम हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गया लॉजिक। ग्रेटिट्यूड कम कर दो, हैप्पीनेस कम कर दो, आपको लाइफ में चीजें मिलनी बंद हो जाएंगी। और वो बढ़ानी है आपका तो बढ़ा लो। आपकी डिजायर पूरी हो चुकी है सारी, तो शुक्राना बंद कर दो। Okay, so I think ठीक the है सर। message is clear. Yes, let's Yes. acknowledge Tarun. Very good Tarun. Good understanding. कुछ चीजें मैं मजाक में बोलता हूँ लेकिन वो समझ में आ जानी चाहिए, है ना? राइट सर। Okay, so last and final call. We are reaching the closure time. क्या लेके जा रहे हैं आज? 2 हफ्ते बाद हमारा वेडनेसडे सेशन हुआ है। I want everybody to go back with something good. Otherwise this effort of bearing the pain and doing the session is not worth it, right? तो कौन कौन क्या लेके जा रहे हैं? प्रवीण जी क्या लेके जा रहे हैं? That I have to make myself a magnet for happiness, and then everything success will come. Very For good. whatever success I want, what type of success Absolutely. I want. Perfect. बहुत बढ़िया। Mm. और आपको अगर बाय डिफॉल्ट आप एक मैग्नेट हैं, आप समझ रहे हो ना? आप बुरे मैग्नेट नहीं हो, Yeah. आप बहुत अच्छे मैग्नेट हो। ओनली थिंग इज आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हो? मैं Mm. बेचारी, आई एम अनलव्ड, आई एम रिजेक्टेड, आई एम फेलियर, यही मिल रहा है लाइफ में। फिर देवदास बन के जी रहे हो या मीना कुमारी बन के जी रहे हो। क्यों? आपने लाइफ में यही अट्रैक्ट किया है। अब बोलो, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए पावरफुल सोल, आई एम ए प्योर सोल, आई एम ए डिवाइन सोल, यू विल अट्रैक्ट डिविनिटी इन योर लाइफ। Mm. क्लियर True. है? तो आई एम के Yeah. बाद आप जो भी बोलोगे वैसे मैग्नेट बन जाओगे। आई एम इज द तरुण, दैट इज फॉर यू एक्चुअली। आई एम से आप मैग्नेट बनोगे, जैसा मैग्नेट बनना चाहते हो उस मैग्नेट में सर पावर आएगी। आई एम के बाद क्या बोल रहे हो ध्यान रखो। हाँ, तो सर हमने वो पहले जब अफर्मेशन करते थे तो उससे आई एम डिवाइन सोल बोलते थे, और एक हमने बीच में समझा था कि आई एम डिवाइन इज मोर पावरफुल, हाँ तो तो बोलो। सोल भी हम छोड़ सकते हैं। तो सोल और वो, इज दैट मेक एनी डिफरेंस कि हम इट इज सोल? पावरफुल। और सीधा बोलो आई एम डिवाइन, तो अब हम ब्रह्मास्मि बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। गॉट इट। वो तो शुरू के वेडनेसडे सेशन है इसलिए आई एम ए डिवाइन सोल बोल रहा हूँ। वेदांता सेशन में आओगे तो हम ब्रह्मास्मि ही बोलोगे। या तो मैं वही पहुंच चुका हूँ अभी। गुड, अभी चलना शुरू किया है, पहुंचे नहीं हो। नहीं मतलब इन दैट डायरेक्शन, सॉरी सर। यस, वेरी गुड। लेट्स एक्नॉलेज तरुण। तरुण इज मेकिंग लॉट ऑफ प्रोग्रेस, आई नो, इसीलिए मैं उसकी जगह खिंचाई करता रहता हूँ। बट गुड जॉब तरुण, यू आर डूइंग वेरी वेल। All right, Thank you, anybody sir. else who wants to share before we close the session? So my takeaway is happiness is the mantra of life. Everything revolves around that. If you are not happy internally, you I won't am be not able happy to बोलो। do. If I am not happy, If I am not happy, good one. If I am not happy internally, I won't be able to have anything happening good around me. very good, बहुत बढ़िया। This is the understanding and this is the insight, correct? हमेशा ज्ञान देने में लगे रहते हैं। यू आप टीचर नहीं हो, आई करके बोलो। हाँ Sorry, सीख रहा हूँ सर। yes, good. Anybody else who wants to share?
क्या लेके जा रहे हैं? सिमी जी ने शेयर किया, तरुण जी ने शेयर किया. Mani, you are missing. If you're there, if you want to share something, we are going to close the session now. Anything you want to share? Okay, good. So my takeaways are exactly the same what Tarun ji and others are mentioning. But if you I say mean, that with I, it will be more powerful for you. yes, sir, yes, sir. So even I will be focusing more on the happiness question to attract more success in my life in all measures, whether it's financial, relationship, I mean, in all the spheres. So yes, because while reading that topic of success and happiness, that came into the mind that I would not have anything to share, because the conditioning of our mind is such that whether we read this word success, it is more of a financial success, right? So, मुझे यही था It's कि okay. मैं हाँ, so It's so okay. It's perfect. however now I see that it is more to it. So और इसको क्या करना चाहिए? So thank you so much. And मुझे एक आपकी line इतनी click हो रही थी while we were doing this session that once you have that wisdom, so like sufferings will be there but pain will not be there. जैसे Yes. है ना? So I could relate with that. कि Pain अगर will be किसी there, suffering will not be there. Yeah, correct. हाँ, sorry sir if हाँ. yeah. So, with all that wisdom from you and everything, so I think we will be running on the right track. You have no choice. Yes, sir. Okay, those who are in the healers program, they have no choice but to be on the right path. I will make sure that you are walking on the right path. Okay. Good, very good. So with this, we come to the end of the session. So thank you very much. Enjoy a great week. Enjoy a great life, and we meet again next week with a lot more sizzling topics for your spiritual growth. Sir. Yes. Sir, we still have 2 minutes left, and I Okay. want full of you. That is, Okay. and Wow. Okay. then Ask any question then. Ask any question. no, I want to show my gratitude, acknowledgement that today I was successful in attending this session. So it increased my happiness quotient. And second is my friend Sangat Manish Uncle. He joined, so it made me more happier. Very And good. that I shared the message in dozens chat, of groups yeah. of mine. Yes. So, but it was at the 11th hour, and now for the next week, I would will be better prepared. I'll send the message in advance, and I'll personally call them also, so that this I would increase the strength. That way, I'll increase my success as well as happiness quotient, sir. Very good. Very good. See, the best way to be happy is to contribute to others. And the best way to Yes, sir. contribute is to spread the divine light to people. जो सो रहे हैं उनको जगाओ. इससे बड़ा spiritual contribution हो ही नहीं सकता. Mitra ji is doing a And great job, and by inviting and guests sir, here. Yeah. since on the same platform, I was lucky to get connected to Gunjan ji, and she has been instrumental in starting our Gita group. So I want to thank her, in this platform also, that her contribution has made that success and increased the happiness quotient, sir. Very good. Very good. बहुत बढ़िया. Let's acknowledge Mitra ji and Gunjan ji. Yes. Very good. Thank you. Yes, anybody else who would like to say? Sir, Mridula Garg ji has joined now, and अब 10 बज गए सर. अब आप जैसा चाहे वो नहीं, ठीक है. अभी हम दो तो लोगों आपको ने अभी नहीं आए वी हैं. वुड नहीं आई वुड वांट मोर ऑफ यू सर. मैं ये नहीं कह रहा. मैं नहीं, सिर्फ वो कह रहा था जो मैंने वो क्या कहते हैं हिमाकत की थी आपको 9:58 पे कहा था कि सर रुक जाइए 10 नहीं बजे. वो मुझे मालूम है. एक ने कोई क्वेश्चन लास्ट एंड फाइनल कॉल पे एक दो लोग पूछ ही लेते हैं. दैट्स फाइन. राइट So let me welcome Oppo CPH 2637 and Mridula Garg ji. Okay, welcome. You have come at the last minute when we are just closing down. So next time, please use the link and be here at 9 o'clock. 9 to सर 10 वो is the scheduled जो time. जो ओप्पो वाले हैं वो उनको मैंने अभी कॉल करके डॉक्टर प्रीति हैं. तो डॉक्टर प्रीति प्लीज ओपन योर माइक एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. एंड सो आई जस्ट कॉल्ड हर अप एंड रिक्वेस्टेड कि बी देयर. तो शायद आपको रोकना भी इसीलिए था कि वो ज्वाइन कर पाएंगी तो वो मैं इंट्रोड्यूस कर पाऊंगा. That's fine. So anyway, you will get the recording, Mitra ji. तो आप इनको भेज दीजिएगा so that they can catch up with the
with the recordings of this session, as well as if they want to join the DHP group, they are welcome to connect with me and I will add them in the group. Yes. Thank you very much, sir. Yes. You would like to share something about yourself? So my name is Preeti, Dr. Preeti Sharma. My profession is doctor, and I'm from Nephro, Okay. basically kidney transplant unit. Yeah. So, Okay, welcome, nothing much. Dr. Preeti. Welcome, Thank you Namaskar. very much, sir. So next time Thank you, you sir. can join from 9 o'clock so that you can enjoy the full session, and of course you will get the recording Definitely. for this session from Mitraji. Yeah, great. Let's acknowledge All right, sir. all the guests who had come here for the first time. And with this, now we come to the end of the session. So thank you very much. Enjoy a great life. And meet again next week. Till then, Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Shubham. Brahmasmi. Thank you, Take sir. care. Thank Good you, sir. night. Thank you so Bye-bye. much. Good night. Bye-bye.